BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں حلال مصنوعات کے صنعتکاروں کی بالآخر سنی گئی، لیکن حلال فوڈ اتھارٹی کے قیام میں اتنی تاخیر کیوں؟ وہ صوبائی سبجیکٹس ہیں، لیکن یہاں چونکہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کا ایشو ہے تو یہ معاملہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آنا تھا، تو صوبائی حکومتوں نے بالآخر اس کے اوپر اب ایگری کر لیا ہے. انڈیا کی ریاست تلنگانہ میں پولیس انکاؤنٹر میں 5 مسلمان نوجوانوں کی ہلاکت، لیکن پولیس کے دعوے پر سوالیہ نشان. اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں قبروں پر تحریر اشعار کس طرح وہاں دفن افراد کی داستان بیان کرتے ہیں. پاکستان میں حلال مصنوعات کے صنعتکاروں کے کئی برسوں کے مطالبے کے بعد ایک حلال فوڈ اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے. اس کے باوجود کہ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء قانوناً حلال ہونی چاہیے، درآمد شدہ اشیاء متنازع رہی ہیں. خاص طور پر مقامی طور پر بنائی جانے والی اشیاء میں استعمال کے لیے درآمد کیے گئے کئی اجزاء کے حلال ہونے پر شک و شبہات ہیں اور ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ایسی کسی فوڈ اتھارٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے حلال مصنوعات کی برآمدات کو بھی مسائل کا سامنا ہے. اسلام آباد سے امبر شمسی کی رپورٹ. ایسی دکانیں عام ہو گئی ہیں جہاں ہر قسم کے مصنوعی کھانے پینے کے اشیاء آج کل کی مصروف زندگی میں سہولت پیدا کرتی ہیں، لیکن اس آسانی کی بھی ایک قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پروسیس کھانے ہیں اور ان میں ایسے کیمیا استعمال کیے جاتے ہیں جو ان کی تازگی برقرار رکھتے ہیں. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ 19 ایسے درآمد شدہ کھانے پینے کے اشیاء ہیں جن کے اجزاء حرام ہیں. لیکن اس بات کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ تو جوس، بسکٹ وغیرہ میں حرام اجزاء کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں ڈالے جانے والے پرزرویٹیوز اور سٹیبلائزرز پاکستان سے باہر سے آتے ہیں. اسی لیے اس جوس بنانے والی کمپنی نے ایک مستند امریکی تنظیم سے اپنی مصنوعات کے لیے حلال سرٹیفکیٹ حاصل کیے. پاکستان اسٹینڈرڈ آف کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اینڈ پنجاب پیور فوڈ رولز، ان کو ہم فالو کرتے ہیں. دین وی آر افیان کا حلال سرٹیفائڈ، تاکہ ان کی آپ کی ایشورٹی ہو کہ وہ سب حلال سورس سے آ رہے ہیں. جو اس میں پریزرویٹیو یوز کر رہے ہیں، ہم اسٹیبلائزرز یوز کر رہے ہیں، ادر کلر فلیورز، دیٹ آر آل سرٹیفائڈ حلال سورسز. تاہم پاکستان میں حلال اور حرام اجزاء کی تحقیق کرنے والی ایسی تجربہ گاہیں نجی طور پر کام کرتی ہیں. سرکاری اداروں کی طرف سے ان کی منظوری کا طریقہ کار واضح نہیں ہے اور نہ ہی حرام کی تعریف واضح ہے. مسلمانوں کے جو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں بھی حلال حرام کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کے ایشوز ہیں. تو ہم بنیادی طور پہ اس میں صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، اور پھر وہ لوگوں کی اپنی مرضی اور پسند پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. حلال مصنوعات کی تجارت کھربوں ڈالر کی ہے، جس میں امریکہ، ملیشیا اور برازیل پیش ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ان مصنوعات کی صنعت میں ترقی کمزور انتظامی ڈھانچے کی نظر رہی ہے. امبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد. امبر شمسی کی رپورٹ آپ نے دیکھی. اسی بارے میں امبر نے وزیر تجارت خرم دستگیر سے بات کی اور پہلے ان سے یہی پوچھا کہ آخر ایک حلال فوڈ اتھارٹی بننے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ یہ بھی اس میں کمپلیکسٹی تھی کہ لائف سٹاک اور زراعت جو ہیں وہ صوبائی سبجیکٹس ہیں، لیکن یہاں چونکہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کا ایشو ہے تو یہ معاملہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آنا تھا، تو صوبائی حکومتوں نے بالآخر اس کے اوپر اب ایگری کر لیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد پارلیمان میں یہ ایکٹ بھی آ جائے گا حلال فوڈ کا. پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ بھی اس کاروبار کے لیے بہت سوٹیبل ہے، جو ایکسیس ہے مارکیٹس کے لیے. تو فائدہ کیوں نہیں اٹھا پایا پاکستان؟ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق صرف ہم سے بالکل قریب جو پرشین گلف کے ممالک ہیں وہاں ایک ریڈی میڈ مارکیٹ موجود ہے، جو کہ اس وقت کئی سمندر پار سے ساؤتھ امریکہ سے منگوا رہے ہیں. تو ہمارے پاس یہ اگر فیسلٹی آ جاتی ہے تو صرف ایک ریڈی مارکیٹ مڈل ایسٹ میں موجود ہے اس کے لیے. حلال صنعت میں جو کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو برانڈنگ کرنی چاہیے باقاعدہ، تاکہ یہ مارکیٹ جو ہے ان کا فائدہ اٹھا سکے. انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اور جب اس کو دیکھا گیا ہے کہ اب یہ ایک ایز اے سیکٹر ڈیولپ ہوا ہے، اور یہاں تک بھی ایشو آیا پاکستان میں جس نے ہمیں یہ اس معاملے میں تھوڑا سا پش کیا ہے کہ ہم اس کو جلدی کریں، کہ پاکستانی جو پروڈکٹس جو ایکسپورٹ ہونا چاہ رہے تھے، جو لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، انہیں پھر
दूसरे ममालिक की हलाल फूड अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ी अपनी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अब ये जो रुकावट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दूर करने वाले हैं। जो इम्पोर्ट्स हैं वो उसमें भी मसाइल खड़े हुए हैं। 19 ऐसे खाने पीने के अशिया थे जिनकी निशानदेही की गई जिनमें हराम अज्जा शामिल थे, तो ये यहाँ भी तो तनाज़ा है। इसमें तो एक क्लैरिटी है, जो पाकिस्तान का जो हमारी वजारत की तरफ से, वजारत तिजारत की तरफ से जो इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है उसमें एक वाज़े ममानियत है हराम चीज़ों की इम्पोर्ट की, वो क्लैरिटी है। इशू ये है कि मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर की जो चेकिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं करती। इट इज़ विद FPR, इट इज़ विद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो वजारत है वो करती है। स्टैंडर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास हैं। तो यहाँ ऐसे मामलात में जो ज़रूरत है, और आई थिंक सिर्फ हलाल फूड के मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में जो चैलेंज है पाकिस्तान में गवर्नेंस का, वो विद इन गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आगे चल के आप अपनी वजारत की क्या किरदार देखते हैं? बाय एंड लार्ज ये जो हलाल फूड अथॉरिटी के बनने से जो एक रेगुलेटरी वैक्यूम था वो फिल हो जाएगा। अब ये मामला कम से कम रेगुलेशन की सतह पर हल कर दिया है, लेजिस्लेशन हो जाती है तो देन इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है पूरी दुनिया में इसकी मार्केटिंग करेगी, अपने इदारों के ज़रिए भी, अपने ट्रेड ऑफिसर्स के ज़रिए भी। यहाँ भी हमारे पास, और आई कैन से दिस पर्सनल एक्सपीरियंस, कि हालिया साल में जो हमारे मिडल ईस्ट से बहुत सारे, आपको मालूम है कि रूलर्स ने विज़िट किया है इस्लामाबाद का, उनके साथ जो डेलीगेशन आए वो इनेविटेबली इसमें इंटरेस्टेड थे। लेकिन सवाल ये भी सब ने किया कि हलाल सर्टिफिकेशन और सैनिटरी कंडीशंस, हाइजीनिक कंडीशंस। वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर से अंबर शमसी ने बात की। आइए अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। इंडिया की 2 जनूबी रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कल 2 अलग अलग मुकाबलों में पुलिस ने कम से कम 25 अफराद को हलाक कर दिया था, लेकिन अब पुलिस के मौक़िफ़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक वाक़े में पुलिस ने 5 कैदियों को हलाक किया जिन्हें अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, जबकि दूसरे वाक़े में संदल के 20 मुबैना स्मगलरों को मारने का दावा किया गया था। दिल्ली से सुहेल हलीम। इस बस में 5 मुसलमान नौजवान सवार थे। उन पर ममनुआ तंजीम सीमी और दूसरी शिद्दत पसंद तंजीमों से वाबस्तगी का इल्जाम था और उन्हें पेशी के लिए अदालत ले जाया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान ने पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। पुलिस गाड़ी में बच्चों को मार दिए। वो एक्यूज जो था, उनके फादर बोल रहे, उनके लॉयर बोल रहे कि 6 महीने पहले वो कोर्ट्स को लेटर लिख के दिए कि उनकी जान को खतरा है। उनके हाथों को चेन बनी हुई है और पूरे के पूरे बस में ही मारे गए, कोई बाहर भागा नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर पब्लिक डिमांड कर रही है। दूसरा वाकया आंध्र प्रदेश में पेश आया, जहां पुलिस ने संदल के 20 मुबैना स्मगलरों को हलाक करने का दावा किया है, लेकिन ये इल्जामात भी सामने आ रहे हैं कि ये लोग स्मगलर नहीं, बेकसूर लकड़हारे थे। और एमनेस्टी समेत इंसानी हुकूक की तंजीमें और सियासी जमातें इस वाक़े की आज़ादाना तहकीक का मुतालबा कर रही हैं। हिंदुस्तान में माजी में भी बटला हाउस और इशरत जहां के मुकाबलों जैसे केसेस पर सवाल उठाए गए हैं और इन ताज़ा वाक़यात से फर्जी मुकाबलों पर बहस दोबारा शुरू हो गई है। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में एक सफ़ेद फार्म पुलिस अफसर के खिलाफ एक सियाह फार्म शख्स को गोली मारकर हलाक करने की फर्द जुर्म आयद की गई है। इस शख्स को उस वक्त हलाक किया गया था जब वो मुबैना तौर पर पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था। तफ्तीशकारों ने इस वाक़े की वीडियो देखने के बाद पुलिस अफसर को गिरफ्तार किया। अमेरिका ने कहा है कि वो सऊदी अरब की सरबराही में इत्तेहादी अफवाज को असलहे की फराहमी का अमल तेज़ कर रहा है। उधर इमदादी इदारों ने अदन में इंसानी बहरान शदीद होने से मुतल्लिक भी खबरदार किया है। यमन के जनूबी शहर अदन की सड़कों पर हौसी पाखियों और हुकूमत के हामियों के दरमियान लड़ाई जारी है। चिली से ताल्लुक़ रखने वाले ये हैं सेबास्टियन अल्वारेज, जो खतरों के खिलाड़ी हैं। इस वीडियो में वो एक ख़ास मिशन पर हैं। उन्होंने विंग सूट पहनकर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई और वो परवाज़ करते हुए सैंटियागो के करीब एक आतिश फ़िशां के ऊपर चिली के परचम को तोड़ते हुए गुजरे और इस इंतहाई मुश्किल हदफ को हासिल करते हुए बहिफाजत ज़मीन पर वापस भी पहुँचे। इंडिया में टैक्स हुकाम चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कैडबरी की जानिब से टैक्स की मुबैना चोरी के इल्ज़ाम की तफ्तीश कर रहे हैं। इस मामले में अगर कैडबरी कसूरवार पाई जाती है तो उसे $92 मिलियन अदा करने पड़ सकते हैं।
इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर जो खबरें ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं उनमें यमन के बहरान से मुतल्लिक़ सफारतकारी के सिलसिले में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद और इंडियन नाज़रीन के लिए पाकिस्तानी ड्रामों में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं उससे मुतल्लिक़ खबर पर हमारे क़ारीन की ज़्यादा तवज्जो है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा किस तरह जायदाद ही नहीं बल्कि अब डिजिटल मवाद की विरासत भी परेशानी की वजह बन गई है। और कश्मीर की तारीख सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि वहाँ कब्रों पर लगे कतबों पर भी नजर आती है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। दुनिया भर में सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऐप्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक नई बहस भी शुरू हो रही है और वो ये है कि मरने के बाद यूज़र्स के अकाउंट्स किसकी मिल्कियत हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स की या फिर उनके वर्सा की। क्लाइव कोलमन ने ऐसी ही सूरत हाल का शिकार एक ख़ानदान से मुलाकात की है। उनकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं फराज हाशमी। लुइस पाल्मर की बेटी बेकी पाल्मर फेसबुक बड़े शौक से इस्तेमाल करती थी। जब बेकी को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो वो अपने बोलने और चलने फिरने की सलाहियत से महरूम हो गईं। उस वक्त उनकी वालदा ने उनके अकाउंट के ज़रिए उनके दोस्तों से राब्ता कायम रखा। बेकी की वफ़ात सन 2010 में हुई, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी वालदा उनके अकाउंट से लॉग इन होकर अपनी बेटी को याद करती थीं। अपने बच्चे को खोने से ज़्यादा दुनिया में कोई बड़ा गम नहीं होता। जब मैं उसके अकाउंट से लॉग इन करती हूँ तो बहुत से लोग उसकी वॉल पर उसके इनबॉक्स में बहुत अच्छे मैसेजेस करते हैं। ये देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसे इतनी आसानी से नहीं भुलाया जाएगा। लेकिन कुछ अरसे बाद फेसबुक ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया। लुइस ने उनसे एक ईमेल के जरिए वजह पूछने की कोशिश की। मुझे एक बहुत मुख्तसर सा मशीनी जवाब मिला। उन्होंने कहा, ये हमारी कंपनी पॉलिसी है। In the old days, our treasured memories were stored in the photo album or the paper diary. पुराने ज़माने में हम अपनी यादें फ़ोटो एल्बम और डायरियों से महफूज करते थे, लेकिन आज की वर्चुअल दुनिया में इसकी जगह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने ले ली है। कौन किस चीज़ का मालिक है हमें पता ही नहीं। हालिया तहकीक के मुताबिक 36% लोग ये समझते हैं कि उनकी वफ़ात के बाद उनके अकाउंट का मालिक फेसबुक होगा, जबकि 20% का ख्याल है कि ये हक़ उनके वरसा को हासिल होगा, और 4 में से 1 इस बारे में लाइल्मी का इज़हार करते हैं। ये एक नई बहस है और इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं। लोग अकाउंट खोलने से पहले कंपनी शराइत नहीं पढ़ते, और हालिया दिनों में वरसा और कंपनियों के माबैन कानूनी तनाज़ात शुरू हो गए हैं। इस साल फरवरी में अमेरिका में फेसबुक ने एक नया फीचर मुतारिफ करवाया, जिसके तहत मरने वालों का अकाउंट डिलीट या फिर उसका कंट्रोल उनके वरसा को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बरतानिया में मुमकिन नहीं। फेसबुक के मुताबिक जब किसी अकाउंट के मालिक की वफ़ात हो जाती है तो उनका अकाउंट एक यादगार में तब्दील कर दिया जाता है, जबकि उनका अकाउंट पब्लिक सर्च में भी ज़ाहिर नहीं होता। तहम उनके दोस्त अहबाब उनकी पोस्ट, तस्वीर और कमेंट्स को देख सकते हैं, लेकिन इन सब में प्राइवेट मैसेजेस का शुमार नहीं होता। बेकी की बहुत सी यादें अब उनके अकाउंट में बंद पड़ी हैं, और लुइस अब अपने पास पड़ी कुछ पुरानी वीडियोस देखकर ही अपना दिल बहला लेती हैं। क्लाइव कोलमन की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमारा YouTube चैनल नाजरीन में बहुत मकबूल होता जा रहा है। अब तक इसे 20 लाख से ज़्यादा मरतबा देखा जा चुका है, जिसके लिए हम अपने नाजरीन के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर चलते हैं, जहाँ अक्सर कब्रों के कतबों पर अशार लिखने की रवायत है। वहाँ की कई दूसरी रवायत की तरह इस रवायत को भी मशहूर सूफ़ी सैयद अली हमदानी से जोड़ा जाता है। कतबों पर लिखे अशार न सिर्फ कुछ लोगों के इनफरादी जज्बात की अक्कासी करते हैं, बल्कि पत्थर के इन टुकड़ों में कश्मीर के हालात भी नोहा कना नज़र आते हैं। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कब्रगाहों के ये पत्थर कभी चीख कर और कभी सरगोशी से कई कहानियाँ कह जाते हैं। साल 1994 में कश्मीर में हिंसा चरम सीमा पर थी। महज 15 साल के नौजवान बेटे की मौत पर माँ बाप का बेपनाह गम कब्र के सिरहाने लगा ये पत्थर दिन रात दोहराता रहता है। मासूम हो तुम, शहीद जिंदा जावेद हो, तुम जावेद ही नहीं बद्र की तस्वीर हो।
90 के दशक में ही मृतक हुए एजाज अहमद मखदूमी को संगतराश ने शहीद बुलाया है और कामना की है कि उन्हें जन्नत में जगह मिले। हर एक कब्र के पे लिखा है, हर एक कब्र, ये तो सब एक ही हिसाब से हैं, सब एक ही, जो भी लिखा है सबका लिखा है, अलग अलग शेर लिखे लेकिन एक ही सब ने लिखा है ऐसे ही। कब्र के पत्थरों पर शेर व शायरी और सजावट के काम में कश्मीर में सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। कहते हैं इस्लाम के विस्तार का मूर्तिकारों की रोज़ी पर गहरा असर हुआ। तब सूफी संत सैयद अली हमदानी ने उन्हें अपनी कला को निखारने का कोई दूसरा साधन ढूंढने को प्रेरित किया। ये तो सर जी वो आते हैं, हमारे पास आते हैं और उसके बाद वो अपने साथ कोई कागज़ लाते हैं सर, उस पर लिखा होता है कि कोई शेर, वो बोलते हैं इस तरह लिखो और हम लिखते हैं। किसी को पता नहीं होते, वो उनके पास इल्म नॉलेज नहीं होता है सर, उसको हम खुद एडवाइस देते हैं और अपने हिसाब से बनाते हैं। कोई शेर हम खुद लिखते हैं। मोहम्मद नसीर बच्चू का परिवार इस काम में पिछले 50 सालों से लगा है। हाँ, कभी कभी ऑर्डर भी देते, ज़्यादातर ऑर्डर ही है, कभी कभी हम ये एडवांस में भी ये बनाते हैं खुद भी। उस टाइम तो ज़्यादातर ये पत्थर चलते थे। आज जब मिलिटेंसी उठी है, मिलिटेंसी में जब शहीद हो गए हैं बहुत सारे कश्मीरी, उस टाइम से आज तक ये मार्बल स्टोन्स ज़्यादा लगाते हैं। बात तब ख़त्म होती है जब बच्चू मोहम्मद इकबाल का वो शेर सुनाते हैं जिसे वो किसी ख़रीदार के ऑर्डर पर एक कब्र के लिए तैयार कर रहे हैं। आसमां तेरी लहत पर शबनम आफशानी करे, सब्ज़े नूरुस्तां इस घर की निगहबानी करे। किसने कहा है कि इतिहास या मोहब्बतों की दास्तानें महज कागज़ों पे दर्ज की जा सकती हैं? कश्मीर में इतिहास के हिस्से कब्रों के सिरहाने लगे पत्थरों पर भी दर्ज हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC, श्रीनगर। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलिया नाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने